Good morning, students. From Standard 7 English Medium, Unit 4. The name of the unit is The Essays That Made Trees Bloom, written by William Elliot Griffiths. And I am already telling you the story of the part 1, and the second part is remaining. And just now I am going to telling you the story of the second part of the unit, the essays that made trees bloom. So students, listen it carefully. I am going to telling you the story of second part, first in English, then in Hindi also. So without wasting my time, I am telling you the story of the second part. Listen it carefully. After a few days, the old man had another dream. The spirit of the dog told him how their wicked neighbor had burnt the mill. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. Here, see the picture, the bloom, the trees. The old man humbly took the ashes from their wicked neighbor. The old man went with his wife to the garden. The picture has already given. See the picture. The man and the woman. Old man and the woman. The good old man humbly took the ashes from their wicked neighbor. The old man went with his wife to the garden. Here in the garden. Their favorite cherry tree was bare. See. Their favorite cherry tree was bare. The old man sprinkled some ashes on it, and the trees bloomed. The whole village ran out to the see the wonder. The greedy neighbor also heard the story. He gathered the remaining ashes. He preserved them to make withered trees blossom. In the meantime, his lord, the DMO, was to pass along the high road. He went to see him with his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree. It was against the rule. Yet, seeing an old man, the leader of the van ignored him. As the DMO's planking drew near, the old man sprinkled his ashes. Immediately, the tree burnt into blossom. DMO was delighted. He stopped and called the old man to him. He thanked him and gave him many gifts and invited him to his castle. The greedy neighbor heard of the story. He did exactly what the good old man had done. However, no flowers were there. The wind blew, and the ashes entered the noses and eyes of the DMO and his wife. DMO called him. He was beaten to death.
The kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. He and his wife lived to a green old age. So this is the sad story of dog and the old man and his wife. So this story, the part second, I am going to telling you in हिंदी. तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ही वृद्ध व्यक्ति को एक और स्वप्न आया. पहले तो स्वप्न आया था मिल वाला, उसके बाद दूसरा स्वप्न आया. किसको आया? तो वृद्ध व्यक्ति को एक और स्वप्न आया. और पहले स्वप्न में कुत्ता दिखाई दिया था और कहा था अब दूसरे सपने में भी ऐसा ही है. कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि किस प्रकार उनके दुष्ट पड़ोसी ने चक्की को जला दिया था. चक्की की राख उठा लो, ऐसा कुत्ते ने कहा. चक्की जला दी तो अब चक्की तो मिलेगी नहीं वापस, इसलिए कुत्ते ने स्वप्न में क्या कहा कि चक्की की राख उठा लो और उसे क्या करना है कि सूखे वृक्षों पर उसे डालो. जो सूख गए हैं वृक्ष उस पर डाल दो और वे फिर से हरे हो जाएंगे. और जो सूख गए हैं, जो सूखे हुए पेड़ है वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे. इसीलिए कहा था कुत्ते ने, क्या कहा? चक्की की राख उठा लो और सूखे वृक्ष पर उसे डालो तो वो फिर से हरे हो जाएंगे. कुत्ते की आत्मा ने ऐसा कहा था. किसको कहा था? वृद्ध आदमी को. बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से अपने दुष्ट पड़ोसी से राख ली. बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बगीचे में गया. उनका मनपसंद चेरी वृक्ष सूखा पड़ा था. वृद्ध व्यक्ति ने उसे पेड़ पर कुछ राख छिड़क दी और वृक्ष फूलों से भर गया. यह चमत्कार देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा. देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये तो चमत्कार है. तो पूरा गांव वहाँ पर आ गया. लालची पड़ोसी ने भी यह कहानी सुनी कि बूढ़े आदमी ने क्या किया. तो वो राख ली और राख को छिड़का और पेड़ हरा भरा हो गया. वो कहानी लालची पड़ोसी ने भी सुन ली. तो उसने शेष राख इकट्ठा कर ली. जो बाकी बची थी राख वो उसने इकट्ठा कर ली. किसने इकट्ठा कर ली? तो लालची पड़ोसी ने इकट्ठा कर ली. उसने सूखे पेड़ों को हरा करने के लिए राख को संभाल कर रख दिया. इसी बीच उसका स्वामी डैमियो मुख्य सड़क से गुजरने वाला था. अपनी राख की टोकरी लेकर वह उसे देखने गया. जब उसकी सवारी निकट आई तो वह एक पुराने सूखे चेरी वृक्ष पर चढ़ गया. यह नियम के विरुद्ध था, पर यह देखकर भी कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, सवारी के आगे चलने वाले ने उसे नज़रअंदाज कर दिया. जब डैमियो की पालकी निकट आई, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी राख छिड़क दी. अचानक ही पेड़ पर फूल खिल उठे. डैमियो खुश हो गया. वह रुका और उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलवाया. उसने उसका आभार जताया, उसे बहुत सी भेंट दी और उसे अपने दुर्ग में आने का निमंत्रण दिया. लालची पड़ोसी ने यह कहानी सुनी. उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा भले वृद्ध व्यक्ति ने किया था, परंतु कोई फूल नहीं खिले. हवा चली और राख उड़कर डैमियो और उसकी पत्नी की नाकों और आँखों में घुस गई. डैमियो ने उसे बुलाया. उसे पीट पीट कर मार दिया गया. तो क्या हुआ ये स्टोरी में देखो. कुत्ते के दयालु मित्र के जीवन में शांति और समृद्धि बनी रही. उसने
और उसकी पत्नी ने सुखी वृद्धावस्था का आनंद लिया। और जो लालची था वो डेमियो ने बुलाया और उसको पीट पीट कर मार दिया गया। तो ये थी स्टोरी यूनिट 4, द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। जो फूलों राख छिड़की और जो सूखे हुए पेड़ थे वो खिल गए, हरे भरे हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।